classroom simulations to leadership lessons, this college has it all. Hello and welcome back to Provider's official YouTube channel. मैं हूँ जागृति और आज हम वापस आ गए हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलेज कैंपस टूर पे जो होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट अल्टीमेट मैनेजमेंट कॉलेजेस में, दैट इज जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। चलेंगे अंदर, देखेंगे यहाँ का इंफ्रा, यहाँ के बच्चों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्लियर करेंगे जितने भी आपके कमेंट सेक्शन में डाउट्स थे। सो लेट्स डाइव इन। Welcome to one of the most important and vibrant spaces on the campus, the Research Learning Center of GL Bajaj, that is the library. So let's get in. So as we can see, there's this reference section there. अगर आप लोगों को कुछ पूछना है या आपके लाइब्रेरियन से कुछ क्वेरी है आपकी, तो फिर आप इधर जाकर बात कर सकते हैं. There's this cabinet mentioned there. उसके साथ ही when you enter the library for both individual study as well as group study, this library has a very productive and peaceful environment. There are sections divided for the library's books where we can see कि यहाँ पे इन्होंने mention किया है बकायदा. There are these topics where they have named finance, human resource, general books. As we know, this is the PGDM library of GL Bajaj. So हर book जो आपको reference के लिए चाहिए होती है वो आपको इस library में provide करी जाती है. Welcome to the heart of the campus events, that is the auditorium of PGDM Institute. This impressive space is where ideas are shared, talents are celebrated and memories are made. From academic conferences to annual fest, this stage has experienced it all and more. With a seating capacity of 250 plus, this is the place जहाँ पे alumni आते हैं for conducting alumni talk sessions. With that we have even expert talk sessions and जितनी भी club activities होती है वो इसी auditorium में perform की जाती है. So here we are with the students of PGDM course at GL Bajaj, जिनसे हम जानेंगे कि उनका अब तक का experience GL Bajaj में कैसा रहा है, क्या क्या चीज़ें उनको एज अ प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिली है यहाँ पे. सो हाय गाइस. हेलो हाय, कैसे हो आप लोग? ऑल गुड मैम. ओके, सो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को अपना एक इंट्रो दे दीजिए. My name is Kundan and I am from Bihar and currently I am pursuing PGDM in GLVIMR and I want to choose finance. That's it. Good morning to one and all. My name is Ashwini Kumari and currently I am pursuing PGDM program from GLBIMR and I have chosen my specialization finance for further study. Good morning everyone, myself Bhanvi and I am from Muradabad. Currently I am pursuing PGDM from GL Bajaj Institute of Management and Research and my specialization will be HR. Hello, I am Nirbhay Agarwal and I belong to Bareilly, Uttar Pradesh. Currently I am pursuing PGDM from GL Bajaj Institute of Management and Research with a keen interest in marketing and operation. Thank you. ग्रेट. सो गाइस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये आपने PGDM का कोर्स आपका है क्या. लाइक काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, MBA PGDM करें क्या करें. सो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि PGDM कोर्स इज़ व्हाट अबाउट, बेसिक्स. Okay, so if I come to an basic knowledge and what is the difference about MBA and PGDM. So MBA is whole of a study which is basically keen into the study of bookish knowledge, while as in PGDM we have more knowledge of practical skills, how do we have to present ourselves, how we do have to prepare PPT and it is more about public speaking and all of that. ओके, कोई और इसका आंसर करना चाहेगा? So basically PGDM is all about practical knowledge or like we gain the corporate exposure more in PGDM as compared to MBA as there they focuses on bookish knowledge or theoretical part, but here in PGDM
they focus on our practical skills. For example, like we have PPTs and like group discussion. So this is the difference between PGDM and MBA courses. As Banvi and Ashwini were sharing about the PGDM program, and some points I also highlight, like we are going to on a live project in some of the companies like Hershey's, Haldiram and all. Also, among with that, we are providing some remote internship that we have to grab from external also. And after that, we are going on a SIP that companies were coming in our campus also. नाउ कमिंग ऑन आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. क्या प्रोसेस होता है जीएल बजाज में पीजीडीएम कोर्स में एडमिशन का? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए. एक्चुअली मैम यहाँ पे मैं अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करता हूँ तो जैसे कि जब मैंने यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम पहले इंक्वायरी किया था तो इसमें क्या है कि जो एक काउंसलर होते हैं उनसे सबसे पहले हमें विजिट करना पड़ता है, उनसे बात करनी होती है. तो उन्होंने एक सबसे पहले एक सिंपल इंटरव्यू करवाते हैं, ठीक है. उसके बाद इंटरव्यू के बाद वो फिर बताते हैं कि हमने उसमें इंटरव्यू में मैंने गुड परफॉर्म किया या नहीं किया. अगर मेरे परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं तो वो एक लेटर इशू करते हैं और फिर ऑफर लेटर मेरे नाम पे आता है. फिर ये एडमिशन की प्रोसेस है इन पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए. ओके, जैसा आपने मेंशन किया आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, तो क्या इंटरव्यू में टफ क्वेश्चंस होते हैं या फिर ऑनलाइन बेसिस पे होता है, ऑफलाइन बेसिस पे होता है? एक्चुअली मैम ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेसिस पे होते हैं कि आप एक्चुअली में आप है कहाँ. अगर आप यहाँ जब कैंपस में विजिट करने आए तभी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन करवा देते हैं. अगर आप नहीं है यहाँ पे, अगर ऑनलाइन के माध्यम से भी लेना चाहते हैं इंटरव्यू तो आप वहाँ ऐसे भी कर सकते हैं. और दूसरा ये है कि आपने ये अभी कहा कि किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन एक्चुअली आपके जो बैकग्राउंड है जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है तो उस बेसिस से नॉर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और अगर आप उसमें अच्छे अगर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो फिर उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है. ओके, सो जैसा कुंदन ने मेंशन किया है यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है आपके पीजीडीएम कोर्स में एडमिशन के दौरान. अगर आप लोगों को जानना है कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है सो उसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें क्या पूरा प्रोसेस है. उसके साथ ही अगर आपको एक 1-to-1 जानना है, क्वेरी है आपकी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, तो वो भी हम आपके रिजॉल्व करते हैं. हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट कि आपके जैसे एडमिशन प्रोसेस में एक होता है कि कोई एग्ज़ाम्स क्लियर करके अपने एडमिशन को लेता है, फिर आइदर इट्स ऑन ग्रेजुएशन बेसिस या फिर किस बेसिस पे डायरेक्ट और काउंसलिंग में आपके एडमिशन्स होते हैं? सो ओके मैम, सो अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर करूँ तो यहाँ पे ब्रोथ क्राइटेरिया में एडमिशन्स होते हैं. फर्स्टली अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने कि कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, कैट, CMAT, मैट, जैट, तो कोई भी दिया है तो उस पर पर्टिकुलर आपको उतने मेरिट होते हैं कि आपके जितनी परसेंटाइल आई है उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलता है. ये आपको लेवरेज होती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एंट्रेंस दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट जिन बच्चों को इंटरेस्ट है डायरेक्ट एडमिशन्स में, बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं जो कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनके लिए भी स्कॉलरशिप है अगर उनका एकेडमिक्स 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन 75% है या 70% है. ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप क्राइटेरिया. दोनों में ही डायरेक्ट एडमिशन में क्या स्कॉलरशिप क्राइटेरिया होता है, विद दैट एग्जाम्स के क्या स्कॉलरशिप क्राइटेरिया होता है अगर जैसे आपने रैंकिंग के थ्रू अपना एडमिशन लिया है तो? स्कॉलरशिप क्राइटेरिया होता है कि लाइक अगर 12th, 10th और ग्रेड में अगर परसेंटाइल हमारी 60 से ऊपर है तो हमें 25,000 की स्कॉलरशिप मिलती है. इनडायरेक्ट एडमिशन या इनडायरेक्ट एडमिशन. बट अगर हम किसी एडमिशन लाइक एग्ज़ाम के थ्रू आ रहे हैं, कैट, CMAT वगैरह, तो उसमें परसेंटाइल के बेसिस पे होता है. लाइक कि अगर 60 से ऊपर है तो इतना स्कॉलरशिप, तो पर्टिकुलर अमाउंट डिवाइडेड है कि अगर 60 से ऊपर है तो इतना या फिर 70 से ऊपर है तो इतना, ऐसे. तो टिल आई थिंक 100% स्कॉलरशिप तक प्रोवाइड होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी इवन हैव अ वीडियो जो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया को पूरी अच्छी तरह से डिटेल में आपको बताती है. आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट्स और भी रहते हैं अभी यहाँ के स्कॉलरशिप के बारे में. ओके गाइस, कमिंग ऑन बात करेंगे कि कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं पीजीडीएम में, कब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, लाइक फ्रॉम विच मंथ, एंड कब तक ये प्रोसेस चलता है? Basically the admission process will starts from December end ओके and it run till June. ओके And in batch 24-26 there was an intake of 500 plus, and in batch 23-25 there was an intake of 400 plus.
ओके, एज मेंशन, जैसा उन्होंने बताया कि दिसंबर से ही यहाँ का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ के एडमिशन के लिए। एंड जिन बच्चों को काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना होता है वो उनको वेट करना पड़ता है थोड़ा जून टाइम तक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि मुझे बताइए कि यहाँ के पीजीडीएम में, यानी कि जीएल बजाज के पीजीडीएम बाकी कॉलेजेस से कैसे हटके है। फॉर दोज एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो भी पीजीडीएम परस्यू करेंगे, उनके लिए आप क्या एक सजेशन देना चाहोगे कि जीएल बजाज में क्या वो प्रोज हैं जो आपको ऑप्ट करते हैं अपने पीजीडीएम कोर्स में। एक्चुअली मैम, मैं जीएल बजाज पीजीडीएम की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पीजीडीएम प्रोग्राम में मैंने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पे एक मेंटोर अलॉट किए जाते हैं आपके ऊपर। और अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे जाके विजिट कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस चीज़ की मुझे कैसे सॉल्यूशन करना है, और वो उस चीज़ के ऊपर बताते हैं। तो मुझे लगता है कि और कॉलेज में से हटके ये जीएल बजाज में ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये शायद मुझे लगता है कि सबसे एडवांटेज है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और पीजीडीएम में एक्चुअली यहाँ पे लिमिटेड सीट होती है, और सीट लिमिटेड होने की वजह से फैकल्टी मेंबर और जो भी टीचर होते हैं वो स्पेशली बच्चे के नाम से जानते हैं, उन्हें अच्छे से फोकस करते हैं उनके ऊपर। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है किसी भी स्टूडेंट के लिए। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ETS यानी कि एक्सपर्ट टॉक सेशंस एंड ATS एलुमनाई टॉक सेशंस होते हैं, कि जो भी हमारे एलुमनाइज हैं जो कि पास्ड आउट हैं वो कॉन्टिन्यूसली आते हैं, उनको विजिट करते हैं कैंपस, और वो करंट स्टूडेंट्स को बताते हैं कि लाइक कॉरपोरेट में क्या हो रहा है, क्या चीज़ की नीड है, आपको कहाँ वर्क करना है, क्या स्किल्स चाहिए करंटली। तो इससे ना एक हमें बहुत अच्छा मतलब बैलेंस्ड होते हैं हम कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है और हम बहुत अच्छे से रिलायबल कर सकते हैं उस चीज़ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपर्ट टॉक सेशंस में जो भी गेस्ट आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है जो कि वो शेयर करते हैं, और स्किल्स भी होते हैं। सो एज दे सेड, यहाँ पे काफ़ी सारे एलुमनाई टॉक्स भी होते हैं एंड दैट्स अ मेजर एसेट। अगर हम देखें पीजीडीएम में प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ द बेसिक की। सो जैसा इन्होंने मेंशन किया, यहाँ पे फैकल्टी भी काफ़ी अच्छा गाइड करती है, उसके साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारे सेशंस भी क्रिएट होते हैं यहाँ के बच्चों को गाइड करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट योर प्लेसमेंट गाइज। आप लोगों के क्या प्लेसमेंट रेट होता है, क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, एंड विद दैट कौन कौन सी कंपनीज आती हैं आपके कॉलेज में, प्लीज़ बताइए। ओके, सो एवरेज जो प्लेसमेंट होता है वो 6 to 7 lakhs होता है, एंड जो हाईएस्ट पैकेज है वो अराउंड 11 to 12 में वेरी करता है। एंड कंपनीज़ की विज़िट होती है, उनमें से कंपनीज़ लाइक विप्रो, इंडस वैली, KPL टेक, लिव प्योर, इसमें सारे डोमेन्स में कंपनीज़ आती हैं, ईदर ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग और HR, गार्डनर एंड आर्चीज एंड बुल, ये सारी कंपनीज़ की विज़िट होते हैं कैंपस। ओके, सो जैसा आप लोगों ने बोला, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं। आप लोगों का इंडस्ट्री रेडीनेस कैसे प्रिपेयर कराता है जीएल बजाज, प्लीज़ बताइए। लाइक हाउ डू यू गाइस फील कि जीएलबी आपको कैसे शेप करता है टू गेट इंडस्ट्री रेडी। इसकी बात करें तो बीइंग रेडी फॉर द इंडस्ट्री विजिट, हमें प्रैक्टिकल विजिट्स कराए जाते हैं, ईदर ऑफ अनमोल। यहाँ पे इंडस्ट्री विजिट्स कराई जाती हैं, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या ऑपरेशंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जहाँ पे ऑफिस एंड डेस्क वर्क जॉब्स हैं, वहाँ पे हमें GD, PI और पब्लिक स्पीकिंग, PPTs एंड वर्कशॉप्स बहुत सारे होते हैं, जिससे हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं और स्किल्स एनहांस होते हैं। ओके, As ma'am, you are asking like how GL Bajaj guide us हाँ for the final placement. For that, there is an incubation center in ITM building that was open for all. In that we can share our ideas. That were also somewhat an initiative of GL Bajaj for the students, so that they can grow their skills and develop some entrepreneurial skills. Like some of the students were doing PGDM, तो वो entrepreneur बनना चाहते हैं आगे बढ़, rather than doing a job, तो वो भी एक ओके। सो जैसा उन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे जीएल बजाज काफ़ी अपने एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है अपना स्टार्टअप ग्रो करने में। आप लोगों के जानकारी में कोई आपके ऐसे एल्यूमिनाई जो आके आपको उन्होंने अपनी स्पीचेस दी हो, जैसा आपने मेंशन किया था कि यहाँ पे एल्यूमिनाई टॉक्स भी सेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं।
हमारे कॉलेज का ही एक स्टार्टअप है प्रोवाइडर ऐप, जिनकी वीडियो हम शूट कर रहे हैं, जिनके लिए हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी. सो दे ऑल्सो दिस स्टार्टअप ऑफ GL Bajaj ओनली, दे प्रोवाइड द हॉस्टल्स एंड they deal with PropTech also. So they are the startup of GL Bajaj, who also got the funds from UP government also. So this is the live example of the startup in GL Bajaj. Okay, great. So next question will be about, आप अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइए. PGDM कोर्स में कितने स्पेशलाइजेशन है एंड कितने बच्चे मेजरली कौन सा स्पेशलाइजेशन प्रेफर करते हैं? I mean, PGDM, there are various specialization like marketing, HR, finance, operation, data, and one more IB was there, but it is not be taught by the PGDM faculty. Okay. And after that, there are two, like one is major minor, or students can choose dual. बेसिकली कंपनी विल मतलब जो कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती है वो मेजर माइनर्स को ही करती है इन कंपैरिजन टू डुअल. ओके, कोई रीज़न इसका आप लोग बताना चाहोगे? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने परस्यू किया है, जो भी सब्जेक्ट्स एज अ मेजर एंड माइनर, जो भी सब्जेक्ट्स एज इफ आई हैव चोजन फाइनेंस एज माई मेजर, सो देयर इज़ अ ग्रेटर एडवांटेज दैट या आई विल बी गोइंग टू फाइनेंस बिकॉज इन माइनर देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं होती. ओके. So I have only one shot for the placement shot, and that's why दो students होते हैं उनकी dedication बहुत high होती है major में. And apart from that, one of the questions was majority students क्या opt करते हैं. So majority students अगर हम data के according देखें तो 23, 20 to 25 में marketing opt हुआ था. हमारे seniors ने marketing opt किया था. लेकिन अगर हमारी बात करें तो अभी तक वही मार्केटिंग एंड फाइनेंस में कंपटीशन है कि वो ज़्यादा चल रहे हैं. ओके. ओके, सो जैसा हम लोग जानते हैं कि काफ़ी बच्चे बाय लोन भी कोर्सेज में ऑप्ट करते हैं. सो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ पे यानी कि GL बजाज में PGDM कोर्स के लिए जैसा कि काफ़ी लोन्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल DRCC, बिहार क्रेडिट कार्ड, एज वी नो. सो क्या यहाँ पे भी वो फैसिलिटी अवेलेबल है? यस मैम, एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, तो मुझे पता है कि जैसे बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से 4 लाख रुपए लोन प्रोवाइड किया जाता है. तो उसमें क्या होता है कि मैम जैसे आप यहाँ पे जब एडमिशन आप इंटरव्यू देते हैं, अगर आपका वहाँ पे यहाँ पे अगर सिलेक्शन हो जाती है, अगर सिलेक्शन होने के बाद आपका वहाँ एक एडमिशन लेटर जारी मतलब इशू किया जाता है आपके नाम पे, तो फिर आप क्या करते हैं मैम, उस चीज़ को फिर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा करके यहाँ से जाके आप DRCC लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो एक ये है कि आप DRCC लोन के जो बिहार के स्टूडेंट है वो ले सकते हैं. बाकी अगर मैं बात करूँ दूसरे बैंक से, तो ये भी यहाँ पे एक्सेप्ट होती है कि अगर आप किसी दूसरे बैंक से लोन लेके अगर यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते. कमिंग ऑन, आपके फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. कितने इंस्टॉलमेंट में आपकी फ़ी आप सबमिट करते हो? सो वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है 50,000 का, वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप आप जैसे आप एंट्री लेते हो, फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज रहेगा, उस दिन आपका एडमिशन मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की फ़ीस जाती है, जो कि हमारे टाइम पे थी 1,20,000. और फिर उसके बाद जो 5 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे होते हैं वो 1,27,000, 1,30,000 और ऐसे करके वो एडजस्टेड होते हैं होल अमाउंट. ओके, अदर देन दिस एकेडमिकली अगर हम बात करें तो उससे हटके आपको कोई वेलकम किट प्रोवाइड करी जाती है, आपके फी स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होती है वो, या फिर? हाँ मैम, वेलकम किट जो होती है वो प्रॉस्पेक्टस जो कि मिलता है हमें जब ऑफर लेटर हमें मिलता है, तो ऑफर लेटर में जो प्रॉस्पेक्टस होता है उसमें लिखा हो, उसमें मेंशन होता है कि वेलकम किट में हमें लैपटॉप मिलता है. आप जो यूनिफॉर्म देख रहे हो हमने ये क्या है, ये भी GL बजाज का ही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट डे में हमें एक फाइल मिलती है जो कि पूरा इंडक्शन प्रोग्राम जिसमें रन कराया जाता है वो भी होता है. ओके. ओके, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आपके ओवरऑल रिव्यू के बारे में बात करते हैं. आप लोग पर्सनली आपका क्या रिव्यू है आपके कॉलेज के लिए? वी रेट 8 आउट ऑफ 10. ओके. So I'll rate 8.5. ओके. अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई विल रेट 8.5 आउट ऑफ 10. मैम मैं 7.5 देना चाहूँगा. ओके.
दैट्स ओके। फॉर दोज एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो पीजीडीएम ऑप्ट करने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं जीएल बजाज में एडमिशन के लिए, सो उनके लिए आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे? अगर एक आगे के बैच के लिए एक मैसेज है, सो आई विल ट्रूली से कि अगर आप एंट्रेंस निकाल रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं, आपके पास है कि आपको अभी लाइबिलिटी है कि आपको अभी ही कोर्स परस्यू करना है, देन इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जीएल बजाज आपको प्रोवाइड करता है, बिकॉज हमने ये सारे एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं और इससे आपको बेटरमेंट ही होगा। आपको कभी भी कम नहीं लगेगा कि नहीं, जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो लेस देन वर्दी है होल अमाउंट के। So according to me, like I would suggest कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे आके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइक प्रेजेंटेशंस में, ग्रुप डिस्कशन में कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ ऑन प्रायोरिटी। तो अगर आपको अभी टाइम है आपका एडमिशन प्रोसेस में, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। Thank you so much, guys. So this was it from the students of GL Bajaj from PGDM course. अगर आपको इससे भी हटके कोई और क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। विद दैट हर कोई आपको आंसर कर देगा। इन लोगों से भी आप इजीली कांटेक्ट में रह पाएंगे। Just you need to do is comment. So here we are in the classrooms of student of PGDM course where learning truly comes to life. Equipped with 3 mega smart boards and high-speed internet, the classrooms are designed with comfortable and focused environment. हर टेबल पे हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने चार्जिंग पॉइंट्स प्रोवाइड करे हैं जो कि काफ़ी कॉलेजेस में देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। दैट्स अ वेरी यूनिक पॉइंट। उसके साथ ही वी कैन सी प्रॉपर लाइटनिंग है। काफ़ी एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है इन्होंने अपने क्लासरूम्स में। Welcome to the hub for innovation and technology on the campus, the computer lab for PGDM students at GL Bajaj. With a seating capacity of 200 plus, काफ़ी एक बड़ा इन्होंने computer lab provide किया है। With that they have high performance computers and latest versions यहाँ पे इसमें installed हैं, यानी कि काफ़ी एक अच्छे कंप्यूटर लैब्स इन्होंने अपने PGDM के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं। एज वी कैन सी कि कंप्यूटर लैब में हमको AC प्रोवाइड किया गया है एंड विद दैट एक बहुत ही मेजर एसेट जो कि है कि यहाँ के PGDM के स्टूडेंट्स को फुल्ली सेंट्रलाइज्ड AC अपने क्लासरूम्स में भी प्रोवाइड करे जाते हैं, जो काफ़ी एक बड़ा एसेट है यहाँ के PGDM स्टूडेंट्स के लिए। So this was it for the campus tour of PGDM course at GL Bajaj Institute of Management and Resource, जहाँ देखा हमने यहाँ का इंफ्रा, यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ के क्लासरूम्स। विद दैट बात करें यहाँ के स्टूडेंट्स से एंड जाना कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस एट GL Bajaj बीइंग अ PGDM स्टूडेंट कैसा रहा। अगर इससे हटके आपको कोई डाउट्स है या कोई क्वेरी है आपकी PGDM कोर्स के रिगार्डिंग, और अदर देन दैट आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट दिख रहा होगा। इवन इफ यू वांट टू कॉल अस, यू कैन डायरेक्टली जस्ट कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम देयर। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।